Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the second video lecture of the chapter Physical and Chemical Changes. In last video, I have explained you about physical change. What is physical change? Change in the physical properties of the object or the material is called physical change. Means what is physical properties? Size, shape, color and state of the material. State means whether it is in solid state, liquid state or gaseous state. So I have explained you that physical change can be reversible or irreversible. That also I have explained you. One important thing that I have told you to keep in mind, बोल के पी जाना है इसको. Physical change, no new substance is formed. Means if you cut the paper is still made up of same material. So I have explained you physical change and I have explained you that physical change can be reversible or irreversible. What is reversible change? A change during which initial substance is obtained by reversing the condition is called reversible change. A change during which initial substance cannot be obtained by reversing the condition is called irreversible change. So कुछ एग्जाम्पल आपको फिजिकल चेंज में हम लोग रिवर्सिबल भी देखे थे और इरिवर्सिबल भी देखे थे. आज हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज. व्हाट इज केमिकल चेंज? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज केमिकल चेंज? व्हेन two or more substance react means act करना, react in such a way that there is formation of one or more new substance. The change is called a chemical change. Chemical change और इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. मतलब क्या? When two or more substance एक साथ जब रिएक्ट करेंगे इस प्रकार से ताकि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो वैसे चेंज को बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं. चलिए रफली आपको बता देते हैं. जैसे मान लीजिए सब्सटेंस ए है, ये रिएक्ट किया सब्सटेंस बी से, तो ये क्या बनाएगा? सब्सटेंस सी प्लस डी. तो इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट और इन दोनों को बोलेंगे प्रोडक्ट. और ये एरो शो कर रहा है रिएक्शन. मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं. इसको समझाने का बहुत इजी एग्जांपल है आपके पास. CO2 प्लस H2O जब ये रिएक्ट करेंगे तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे. तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट. ये दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट. प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. नहीं, अब मान लो रेस्पिरेशन, ये भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. इसमें C6H12O6 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, फॉर्मेशन CO2 प्लस H2O का है. तो ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया और ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गया. तो रेस्पिरेशन में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट. carbon dioxide and water are the product, and during photosynthesis
carbon dioxide and water are the reactants and the carbohydrate and the oxygen is the product. So what do you mean by reactant? Reactant means the substance, two or more substance that react together and undergoes change. इसमें कुछ बदलाव हुआ होगा तभी तो ये बदल गया. So undergoes change is called reactant. तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं what is reactant and what is product. अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे आपको याद रखनी ही चाहिए केमिकल रिएक्शन में, क्या new substance is formed during chemical change. ये तो डेफिनेशन भी कह रहा है there is formation of one or more new substance. तो वहां भी लिखा हुआ है, तो इसी बात को हम एक बार फिर से लिख दिए हैं क्योंकि ये हाईलाइट है, इसको याद रखना ही होगा आपको. और दूसरा पॉइंट क्या बोले, केमिकल चेंजेस आर irreversible. Don't ask me definition of reversible. Irreversible. Already I have explained you what is irreversible. A change during which the initial substance cannot be obtained by reversing the condition is called irreversible change. So chemical changes are irreversible. चलिए अब कुछ बातें हैं, कुछ टर्म जो है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज से रिलेटेड, जैसे रिएक्टेंट. क्या कहते हैं रिएक्टेंट को? Substances that take part in a reaction and undergoes a change is known as reactant. अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप कह सकते हैं CO2 plus H2O are reactant during photosynthesis. ठीक है ना? चलिए, प्रोडक्ट. What is product? The substance means the substance that is formed during a reaction is called product. एग्जाम्पल अगर हम पूछे तो C6H12O6 plus oxygen are product for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए C6 मींस कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या है? ये प्रोडक्ट है. तो ये आप जान ही रहे हैं, तो आपको समझा दिए हम. ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है. चलिए ठीक है. सो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हमेशा इरिवर्सिबल होगा. कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए. कुछ एग्जाम्पल ऑफ किसका? एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर. जब आप एक पेपर को जलाइएगा तो क्या होगा? ये जो पेपर है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और ये क्या बनाएगा? स्मोक बनाएगा, धुआं बनाएगा. फिर उसके बाद ये लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा,
ये एस मतलब राख भी बनाएगा, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब बर्निंग ऑफ पेपर इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। और जो एस है फिर से वापस उससे पेपर मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा, इसका मतलब इट इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का खराब होना मतलब बासी हो जाना, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक एग्जांपल है आपका केमिकल चेंज का। फिर है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। फोटोसिंथेसिस, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड का फॉर्मेशन। राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। तो इतना तो एग्जांपल बता दिया आपको केमिकल चेंज का। सो क्या याद रखनी है यहाँ पे बात आपको केमिकल चेंज में? A change means when two or more substances react together in such a way to form new substance, one or more new substance, then the change is called chemical change, or it can be also told as chemical reaction. चलिए, ये तो हो गया केमिकल चेंज के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिए, व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट आर रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, और एक और बात इंपॉर्टेंट बात है इरिवर्सिबल, ये भूलिएगा नहीं। चलिए अब कुछ बात और बताते हैं। आपके बुक में एक एक्टिविटी है, देयर इज वन एक्टिविटी इन योर बुक, इन दैट यू कैन सी मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक मेटल है, उस मेटल का एक रिबन मतलब पतला सा लेयर होता है, वो रिंग के जैसा आता है। सो मैग्नीशियम रिबन हमारे लेबोरेटरी में पाया जाता है। दिस मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ किया जाता है सैंड पेपर से, क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले उस लेयर को हटाना पड़ता है हमको। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ करके जब उसको हम आग के पास या हीट के पास ले जाएंगे तो उसमें आग लग जाएगा। When magnesium ribbon burns, it burns with very bright light, बहुत तेज रोशनी होगा, बहुत तेज रोशनी। आपका जो पटाखा वगैरह होता है उसमें मैग्नीशियम का यूज होता है, इसी के कारण वो उतना ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। सो मैग्नीशियम एक मेटल है और इसका यूज किया जाता है, मतलब जब इसको जलाएंगे इट प्रोड्यूस डैजलिंग लाइट और वेरी वेरी ब्राइट लाइट। तो होता क्या है, इसको ध्यान से सुनिए, ये तो आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके, हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए इसको, मैग्नीशियम का रिबन लेना है, मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, उस मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे। किसी चीज को जलाने का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ द फूड। हम लोग भोजन लेते हैं तो उसको बर्न करते हैं। बर्न करना मतलब क्या, हम आग लगा लेते हैं? नहीं, वो फूड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर मान लो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ फूड का रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है तो उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर तेजी से कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको बर्निंग बोलेंगे। पेपर को जलाते हैं, वहां भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अभी तो लिखे थे यहाँ पे। तो पेपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो तेजी से जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो आग लग जाएगा। अगर धीरे धीरे, अब जैसे मान लीजिए लोहा में भी जंग लगता है, तो जंग लगना क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, और वहां पे वो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी। रस्टिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंबशन, बट वो स्लो कंबशन है, धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। और जब किसी चीज में आग लगाते हैं तो तेजी से रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम को हमको आग लगा दिए, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है।
जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है ये एस के रूप में रहेगा। इसको जब जलाएंगे तो बोले ना राख मिलेगा, व्हाइट कलर का राख होगा ये। तो ये जो राख होगा इसको थोड़ा सा किसी प्लेट में ले लेंगे, तो मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड के एस को हम थोड़ा सा किसी प्लेट में ले लिए और इसके बाद इसमें थोड़ा सा वाटर मिला दिए, H2O इसके साथ मिला देंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पेस्ट मिला है और जो सॉल्यूशन, थोड़ा सा पानी डाल के इसको डिसॉल्व कर लिए हैं, पानी डाल के एस को उसमें डिसॉल्व कर लिए हैं, और इस जो सॉल्यूशन मतलब ये जो लिक्विड मेरे को मिला है उसमें क्या करना है कि मान लो ये रेड लिटमस पेपर है और ये एक ब्लू लिटमस पेपर है। अब इसको इस पे एक बूंद गिराना है और इस पे एक बूंद गिराना है। याद होगा आपको हाइड्रोक्साइड क्या बोले थे? ये एक प्रकार का बेस है। अगर बेस है इसका मतलब रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, तो देखेंगे रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये एक बेस है। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? मैग्नीशियम एक मेटल था, जब जलाए तो इसको एस बन गया, इससे कुछ लाइट भी प्रोड्यूस हुआ, हीट भी प्रोड्यूस हुआ, तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक केमिकल चेंज है। जब इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो यहाँ पे भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज आल्सो ए केमिकल चेंज एंड इट गिव्स color change in the red litmus paper. Red litmus paper turn into blue. It means this magnesium hydroxide is basic in nature. ये एक एक्टिविटी है आपके बुक का, हम अभी लिख देते हैं और फिर उसको बाद आप उसको भी लिख लीजिएगा, फिर हम समझा देंगे थोड़ा सा और। Okay, so as you can see, this is the activity. What is the aim of the activity? To observe the formation of a new substance on heating a magnesium ribbon and adding water to it. मतलब हीट करने पे भी नया सब्सटेंस बन रहा है और वाटर ऐड करने पे भी नया सब्सटेंस बन रहा है। इस चीज को देखना है एम इस एक्टिविटी का। मेथड, a thin strip of magnesium metal is called magnesium ribbon. पतला, एक thin strip, पतला और पत्ती जैसा, तो उसको कहेंगे magnesium ribbon. Take 10 centimeter long magnesium ribbon and clean its surface with sandpaper. Sandpaper से इसके surface को साफ कर लेंगे. Hold it with the pair of tong. Tong means होता है चुट्टा जैसा. And heat it over the flame until it catches fire. मतलब आग के ऊपर ले जाकर इसको रखना है जब तक ये आग पकड़ ले। Observation: Magnesium ribbons burns with the brilliant white light. मतलब बहुत तेज रोशनी के साथ ये जलेगा, forming a white powdery ash. मतलब ये जो राख बनेगा वो व्हाइट होगा और पाउडर जैसा होगा। कंक्लूजन, क्या समझे इससे हम? White ash looks different from the magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, वो शाइनी है, वो चमकता है, और जो एश है वो शाइनी नहीं है, वो व्हाइट कलर का है। तो इसका मतलब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। Ash cannot be changed into magnesium ribbon, so it is irreversible. जो white powdery ash है, that cannot be changed back into magnesium ribbon. It means it is a irreversible change. मैग्नीशियम, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम
react with oxygen to form magnesium oxide. तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. These three conclusion मतलब इसको देख के हम लोग कह सकते हैं न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ. इससे हम लोग कह सकते हैं इरिवर्सिबल है. ठीक है, चलिए. अच्छा, चूंकि हम बता रहे हैं कि ये जब जलता है तो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट से, मतलब ये लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये जलेगा तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस करेगा. तो इसका मतलब लास्ट में 3 पॉइंट जो हम लोग कंक्लूड किए. पहला, ए न्यू सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. केमिकल चेंज का तो पहला क्राइटेरिया यही था ना कि न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा. तो हाँ जी, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब इट इज ए केमिकल चेंज. दूसरा, चेंज प्रोसीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. तो इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस, तो नया सब्सटेंस बन रहा है. ओके, नेक्स्ट, द चेंज इज इरिवर्सिबल. ऑब्वियसली यहाँ पे हम बोले एस कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू मैग्नीशियम रिबन, इट मींस इट इज इरिवर्सिबल. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतनी बात समझने में. सो दिस इज वन एक्टिविटी. और एक छोटा सा पॉइंट और जो है नीचे लिखना है, हम पॉज करते हैं, उसको लिख देते हैं. उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो अभी क्या हो जाएगा, वहां पे रिएक्टेड मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस वाटर हो जाएगा और प्रोडक्ट जो होगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा. इसका मतलब वहां भी एक रिएक्शन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. एडिंग वाटर है ना, लिखे हैं ना. तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालेंगे तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है. और उसमें हम लोग जानते हैं एसिड और बेस पढ़े ही हैं हम लोग, बताते हैं. सो टिल नाउ वी हैव सीन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया. अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पाउडर के रूप में है. टेक द पाउडरी एस इन अ बीकर एंड ऐड 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर. स्टीर द मिक्सचर थॉरोली, अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए. टेस्ट द मिक्सचर विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. जैसा कि आप जानते हैं क्या काम करता है रेड और ब्लू लिटमस पेपर. मिक्सचर विल चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, शोइंग दैट द मिक्सचर इज बेसिक. ये बताने की जरूरत नहीं है. So here magnesium oxide react with water to form magnesium hydroxide. तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल चेंज है. इन दोनों को हम लोग रिएक्टेंट कह सकते हैं और इसको हम लोग प्रोडक्ट कह सकते हैं. ठीक है, तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही बता ही चुके हैं आपको. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. इट इज बेसिक इन नेचर. सो इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. ये समझाने के लिए लिख दिए हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, यहीं तक लिखिएगा आप. चलिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने में. फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन अगले दिन देखेंगे. ओके.